السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور، اور میں ہوں محمد سہیل، اور میں ہوں ظفر اقبال۔ اور آج ہم جس ویڈیو پریک کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے میں ایک کشمیری مسلمان آپ کے کشمیری بھائیوں سے معافی مانگنا سمجھتا ہوں، کشمیری پنڈت بھائیوں سے معافی مانگنا سمجھتا ہوں۔ تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ ایک ویکتی ہمارے ساتھ باہر سے جڑے ہوئے ہیں، اب تک نہیں بول پائے، بہت دیر سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کے پاس جا رہا ہوں۔ جاوید، میں آپ کو پورا موقع دوں گا، بالکل۔ جاوید بیگ جنرل سیکریٹری ہیں پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ سیکولر کے، ان کی بات سننی چاہیے۔ یہ سوال پہلے پوچھ کے شروع کریے۔ نہیں، آپ دیکھیے، آپ ان کی بات سنیے پہلے۔ میں سنوں گا، آپ سنیے ان کی بات۔ آج جاوید صاحب آپ سے جب بات ہو رہی ہے، بہت سارے کشمیری پنڈت بھائی بہن، ہمارے بزرگ، مہیلائیں سب یہاں اسٹوڈیو میں ہیں، اور آپ کا جب میں نے نام لیا تو سب نے کہا کہ آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ وہ یہ جو پیچھے میرے جو کچھ تالیاں بج رہی ہیں، یہ آپ کے لیے بج رہی ہیں۔ تو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا جو آج بتایا جا رہا ہے، کیا سچائی ہے؟ دیکھیے، بہت انفارچونیٹ ہے اگر آج کے ڈیٹ میں بھی کوئی حقیقت کو نکار رہا ہے، کوئی سچائی کو نکار رہا ہے، اور سچائی کے لیے، حقیقت کے لیے نہ ہی دا کشمیر فائلز مووی کی ضرورت ہے، نہ ہی بھاجپا کی ضرورت ہے، نہ ہی کانگریس کی ضرورت ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ احساس کی ضرورت ہے، ایک زندہ ضمیر کی ضرورت ہے، باغیرت ذہن کی ضرورت ہے۔ کشمیر فائلز بنے یا نہ بنے، اس سے تو ہم اس چیز سے نکار نہیں سکتے ہیں نا کہ کشمیری پنڈتس کے ساتھ ظلم نہیں ہوا۔ میں کشمیر کے جس گاؤں میں اس وقت بیٹھا ہوں، اسی گاؤں میں 1997 21 مارچ جب پورے کشمیر میں نوروز منایا جاتا ہے، میرے ہی گاؤں کے کشمیری پنڈتوں کو شہید کر دیا گیا۔ مسلمان سارے اس میں شریک نہیں تھے، ان کے قتل و غارت میں، ان کے جبر میں، ان کے ظلم میں، لیکن جنہوں نے ظلم کیا وہ ہمارے ہی گھروں سے تھے، مسلمان ہی تھے۔ کیوں اس پہ راجنیتی ہو رہی ہے؟ یہ بھاجپا ورسز کانگریس نہیں ہے، ہندو ورسز مسلمان نہیں ہے، یہ انسانیت ورسز حیوانیت ہے، سچ ورسز جھوٹ ہے، حقیقت ورسز جو ہے پروپیگنڈا ہے۔ پروپیگنڈا یہ ہے کہ آج حقیقت کو پھر سے نکارا جاتا ہے۔ جو کشمیری مسلمانوں نے اس وقت خاموشی کی، اسی لیے تو آج ہمیں برابر کا جو ہے گنہگار ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اس وقت خاموشی کی۔ اور جن لوگوں نے کشمیری پنڈتوں کو مارا وہ ہمارے گھروں سے تھے، ہمارے بستیوں سے تھے، مسلمان لوگ تھے۔ کشمیری پنڈت، جو میرے ایک دوست نے ابھی کہا، کشمیری پنڈت نے کبھی کشمیری مسلمان کو نہیں مارا، کبھی کشمیری پنڈت نے ہماری مسجد کو نہیں توڑا، لیکن ہاں، بدقسمتی سے مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ہاں، ہمارے ہی بستیوں کے لوگوں نے کشمیری پنڈتوں کے گھروں کو لوٹا۔ میرے گاؤں میں، بیروا میں، سنگرام پورا گاؤں کو لوٹنے والے کوئی غیر نہیں تھے، کشمیری مسلمان ہی تھے، اسی علاقے کے لوگ تھے۔ پاکستان کے دہشت گردوں کے ساتھ برابر کے شریک تھے اس گناہ میں جو ان اسلامک تھا۔ کشمیری پنڈتس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان اسلامک تھا، اور آج اگر اس حقیقت کو کوئی نکارتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ان اسلامک ہے۔ اسلام میں یہ بات بالکل باور کی گئی ہے کہ اگر آپ کی بستی میں، آپ کے شہر میں غیر مسلمان رہ رہے ہو اور وہ منارٹی میں ہو، آپ پہ فرض عائد ہوتا ہے، اسلامک فریضہ ہے، سماجی فریضہ، انسانیت کا فرض ہے کہ آپ ان کی جان، مال، عزت، ان کے جو پلیسز آف ورشپ ہے، عبادت گاہیں ہیں، ان کے بزرگ بچوں کی آپ حفاظت کریں۔ اور اگر آپ نے وہ حفاظت نہیں کی، جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا، اس کے لیے ہم کشمیر کے لوگ سارے شریک ہے، برابر کے شریک ہے۔ ہماری خاموشی کی وجہ سے ان پہ ظلم ہوئے، اور ہم نے، کشمیر کے مسلمانوں نے اس وقت ہماری جو عبادت گاہیں ہیں، مقدس جگہیں ہیں، ان لوٹرز کے ہاتھ میں دی، ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں دی۔ یہ بھی ایک گناہ ہم سے ہوا۔ ہمیں آج کے ڈیٹ میں ہاتھ جوڑ کر کشمیری پنڈت بھائیوں سے، پروردگار سے معافی مانگنی ہے، تب جا کر ہم ان پاپوں سے اپنے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم نے راجنیتی کی، اگر آج بھی ہم نے بھاجپا ورسز کانگریس کیا، ہندو ورسز مسلمان کیا، تو شاید آنے والے وقت میں
और मुसीबतें कश्मीर में आएंगी। ये मूवी किसी प्रोपेगेंडा पे नहीं बनाई गई है, जो हुआ है उसी पे बनाई गई है। अब अगर इस पे कोई प्रोपेगेंडा चलाए, वो भी उसी बिट कराटे जैसा है। अगर आज के डेट में ये मूवी देखकर या इस मूवी को एक टूल बनाकर आज मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, तो कोई मकसद हमारा पूरा नहीं हो रहा है। हम रिकंसिलेशन चाहते हैं। हमारा मकसद है कश्मीरी पंडित बाइज्जत तरीके से अपने घरों में आए। उसके लिए जावेद की इजाजत नहीं चाहिए कश्मीरी पंडित को। जितना हक जावेद का इस कश्मीर में है, उतना ही हक टीकालाल तपलू साहब की फैमिली का है। टीकालाल तपलू एक फैमिली के नहीं थे, वो हमारे कौम के थे। जावेद जी, एक बात बताइए फिर। अभी आपने कहा कि इनका बराबर का हक है। क्या आज वो सोच बदल गई है जो 90 में थी? क्या आज ये लोग बिल्कुल महसूस करके वहीं अपने घरों में जा सकते हैं? और मैं दूसरी बात कहता हूं, क्या इनके घर हैं? नहीं, बदकिस्मती से मैं फिर एक बार शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। जिस वक्त कश्मीरी पंडित यहां सब कुछ छोड़कर अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए यहां से भागे। कश्मीरी पंडित भगोड़ा नहीं है। जो कश्मीरी पंडित को भगोड़ा कहेगा वो इंसानियत का दुश्मन है, कश्मीरियत का दुश्मन है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। एक पूर्व मुख्यमंत्री कश्मीर के थे जिन्होंने मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को भगोड़ा कहा। कश्मीरी पंडित भगोड़ा नहीं था, बस अपनी इज्जत असमत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी धरती छोड़ी, अपने मकान छोड़े और उन मकानों को लूटा गया। मेरी बस्ती में उनके घरों को लूटा और इसी बस्ती के लोगों ने लूटा। आज के डेट में बहुत सारे कश्मीरी पंडितों के पास जमीन नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो मुसीबतों में बेच डाली। और जिसने भी वो जमीन खरीदी, दैट वाज अन इस्लामिक। इस्लाम के आईन के मुताबिक वो जिसने भी वो जमीन खरीदी है, उसने बातिल किया है, गुनाह किया है। और जिसने कश्मीरी पंडित के जमीन को कहीं पे भी एनक्रोच किया है, कब्जा किया है, इसमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा है, अगर एक मुसलमान गैर मुसलमान की जमीन जायदाद पे नाजायज कब्जा करता है, कयामत के दिन, रोजे महशर के दिन, वो उस गैर मुसलमान की तरफ से वकील बनकर आएंगे। मैं गलत नहीं बता रहा हूं, इस्लाम बता रहा हूं। और अगर जिस किसी ने भी कश्मीरी पंडित के जमीन जायदाद पे कब्जा किया या उस वक्त मजबूरी की हालत में खरीदा, उसने अन इस्लामिक किया, गैर इखलाकी काम किया, गैर समाजी काम किया। हमारा फरीजा था उनकी जिंदगी बचाना, उनकी इज्जत असमत बचाना, उनके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, इबादत गाहें हैं, उनको बचाना, उनकी जमीन जायदाद की रखवाली करना हमारा फर्ज था, जिसमें हम फेल हुए। मैं इसीलिए कहता हूं, मेरे वालिद साहब की जनरेशन से यह गलती हुई, क्योंकि मैं छोटा था। मैं एज ए कश्मीरी मुसलमान माफी मांग रहा हूं मेरे कश्मीरी भाइयों से कि हां, हमसे गुनाह हुआ, गलती हुई। हमने आपको नहीं मारा, लेकिन हम आपको बचा नहीं पाए, वो गलती हमारी है। और इस गुनाह में बराबर के शरीक हमारे मुल्क के लोग हैं, वो भी उस वक्त खामोश रहे। आज ये भाजपा और कांग्रेस के लोग आज बहुत हमदर्दी दिखा रहे हैं। कहां थे ये लोग उस वक्त जब मेरे कश्मीर का, मेरा अपना खून मारा जा रहा था? यहां पे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों के हाथों उन्होंने यहां कश्मीर के जो सबसे क्रिमिनल माइंडसेट के लोग थे, उनको अपने साथ जोड़ के हमारे कश्मीरी मुसलमानों पे भी, कश्मीरी सिखों पे, कश्मीरी हिंदुओं पे बहुत जुल्म ढाए। कहां थे उस वक्त ये लोग जो आज स्पोक्स पर्सन बनकर टीवी पे आके कश्मीर पे राजनीति कर रहे हैं? कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है और कोई बंगाल से आ रहा है। हम नहीं करने देंगे इन्हें गंदी राजनीति। मेरे कश्मीर का, मेरे घर का टीकालाल तपलू शहीद कर दिया गया, वो मेरे घर से था। नीलकंठ गंजू साहब मेरे घर से था। सरला भट्ट किसी एक पंडित की बेटी नहीं थी, मेरे कश्मीर के कौम की बेटी थी, मेरी बेटी बहन थी। और तब कहां थे ये लोग? सारे हिंदुस्तानियों को कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी है। ये सारे उस गुनाह में शरीक जो खामोश रहे। मैं जवाब की बातों का जवाब साहब का ये कॉल है। लेता हूं। पहले सलमान निजामी बोले। अच्छे लोग जो खामोश, ये भी कश्मीरी है, कश्मीरी मुसलमान ही है, बुरा करते हैं। बोलिए। हम इस पे राजनीति नहीं करने देंगे। जावेद जी एक मिनट, सलमान निजामी बोल रहे हैं आपकी बात पर। अपनी जमीन जायदाद पे बसे, जिस तरह जावेद रह रहा है, इसी तरह ठीक है जावेद जी ठीक है, आप जरा सुनिएगा, बोलिए। देखिए, हमें इस मूवी से कोई आपत्ति नहीं है, हमने कहीं भी नहीं बोला कि इसकी रोक लगनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से भाजपा उसका इस्तेमाल कर रही है, जिस तरीके से भाजपा के नेता, इन पे सवाल होना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर कांग्रेस गलत है, उनको सजा दीजिए, हराया ना आपने कांग्रेस को। मैं कह रहा हूं भाजपा पे सवाल क्यों नहीं होना चाहिए?
1990 में सरकार में कौन थे? और हिंदुस्तान की फौज को आपने बाद में क्यों भेजा जब राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में घेराव किया? आज 8 साल से आप हैं, पीछे आप छोड़िए कौन सी सरकारें रही थी, 8 साल से आप सरकार में हैं, कितने कश्मीरी पंडितों को आपने वापस भेजा वहां? ठीक है। क्या छोटा आपने जवाब पैकेज दीजिएगा। दिया मैं उनको? उस बात सुशील जी कितनी से पूछूंगा, नौकरियां दी? हकीकत क्या है, कितने किसने किसके लिए क्या घर किया? बनाए उनके लिए? ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो में जो जुवेद भाई थे वो तो थोड़ा सा ना इस चीज़ को लेकर हाइपर हो रहे थे। होना बनता है, क्योंकि भाई जब रियलिटी होती है ना, जो उसको झुठलाया नहीं जा सकता, जो हो चुका है उसको भाई छुपाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। अब कोई इस चीज़ को बोले कि ये एक फेक चीज़ है या ये रियलिटी नहीं थी, कश्मीर फाइल्स एक भाई ऐसे ही चलाई जाने वाली एक मैम है ये। यार तो फेक बोल कौन ठीक है रहा ना, है? सवाल कौन उठा रहा है? ये सारे इनके लोग ही उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, वही लोग उठा रहे हैं ना, वही लोग उठा रहे हैं ना। उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए भाई। ये जो यार कुछ हुआ है, ठीक है ना, वो एक कश्मीरी है, वहाँ पर रहता है, उसकी एज भी ये नहीं कि 10-15 साल है कि उसकी बातें बंदा सुनकर ये बोले कि भाई ये झूठ बोल रहा है। उसकी काफ़ी उम्र भी है, उम्र के लिहाज से रियलिटी तो दिखाई है ना यार लोग रियलिटी को उसने नहीं उसने मानते। रियलिटी दिखाई भी है, मतलब जुल्म हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने काफ़ी कश्मीर फाइल पर वीडियो भी बनाई है, सर्च भी किया है, लेकिन जुल्म तो जुल्म होता है, चाहे उनके साथ हुआ है चाहे नहीं हुआ, इस बात का मुझे भाई कोई इल्म नहीं है। लेकिन वीडियो के मुताबिक ही जो सुना है ना, वो जुल्म हुआ है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पर पाकिस्तान को इन्वॉल्व कैसे आप कर सकते हैं ओपनली? एक आप बात करते हैं कि इधर के ही लोग थे, इधर ही रहते थे, फिर आप ऑटोमेटिक भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है। पाकिस्तान कहाँ से दहशतगर्दी फैला रहा है? आपको यार ऐसे ओपनली आप इल्ज़ाम लगा देते हैं। आपने एक कभी सबूत दिया है? आपसे जो सबूत मांगते हैं, एक सबूत दिया है कि इसमें हम इन्वॉल्व हैं, कश्मीर में हम जुल्म कर रहे हैं, ऐसा दहशतगर्दी उधर फैला रहे हैं। यार आप अब पंडितों पर तो बहुत बोलते हैं, बहुत सी मूवी भी इधर, इस मूवी ने भी बहुत हलचल मचाई है, रियलिटी भी दिखाई है कि ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ। कभी आप कश्मीरियों की भी बातें सुनी आपने जो इस साल 264 कश्मीर बेकसूर मारे हैं, विदाउट रीज़न के हमने मार दिए, कभी उस पर भी बात उठाई है? वो भी किसी के बाप के बेटे ही थे ना, उनकी भी माएँ रो रही है उनके लिए। आपको कभी उसका भी एहसास हुआ है? आप ऊपर से ऐसे एक घिनौना इल्ज़ाम लगा देते हैं कि भाई वो उधर से पाकिस्तान से आए थे, हमने लश्कर तैयबा के मार दिए थे। आपने कभी एक प्रूफ दिया है मार करके भाई ये लो आपके आदमी ये लश्कर तैयबा के थे, इनका कनेक्शन पाकिस्तान के से था? नहीं, उधर कश्मीर आप मारते हैं और बोल देते हैं इल्ज़ाम लगा करके पाकिस्तान भेज रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इधर खुद दहशतगर्दी की जंग में मतलब कि इनके खिलाफ इतनी दहशतगर्दी इधर हुई है पाकिस्तान के, अभी भी हम इनके साथ दहशतगर्दी कर तो नहीं रहे, वो दहशतगर्दों के साथ हम जंग कर रहे हैं। मतलब कि इधर भी उन्होंने इतने धमाके किए हैं, इतने मुल्क के हालात ख़राब किए हैं, उनको पैसा मिलता है, कौन देता है ये आप पता लगाएं। हाँ भाई मेरी बात सुने ना, वो पैसे आप के लिए वो ठीक करते बोलते हैं। लेकिन ये जो आप बात करते हैं ना 234 वाली, कितने बोल रहे थे आप भाई कि ये अभी की रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट आपने कहाँ से देख ली भाई? हमें भी तो कुछ बताएं कि यहाँ पर ये रिपोर्ट है, इन्होंने बताया है या होम्योपैथी क्या होम्योपैथिक नहीं बोले ना क्या? इधर हकीम बैठा हूँ मैं। नहीं बोले, फिर कहाँ कौन सी वेबसाइट है? होम्योपैथिक है क्या? राइट की रिपोर्ट है, अच्छा, इस साल की, होम्यो आप राइट। उधर जाकर देख लेना। ठीक है, ऐसे हमें भी है ना, दिखा कभी दे उन यार। पर भी मैंने यार- आज से क्यों, मेरी बात सुने ना, काफी यार देर हो जो गई आप ये दहशत बोलते हैं मेरी ना। बात सुनो ना, जो दहशतगर्दी होती है ना, वो नहीं देखते कि कौन है ये, इधर से आया उधर से आया। दहशतगर्दी हर खित्ते में है, हमने कभी ओपनली नहीं बोला कि उधर से दहशतगर्दी। या प्रूफ दें, अगर आपके यार- पास प्रूफ है तो प्रूफ दे, इधर हम नहीं मजम्मत करें। यार वो तो एक अलहदा चीज़ है ना, वो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हम यार नहीं इधर कैसे भेजेंगे इस चीज़ को, ये आप ना जो बोलें। वाकया है ना कराची में, जब हालात खराब, इधर हमारे गांव का एक भाई दोस्त था, उसका दोस्त था, मतलब कि वो तो उसके पास काम कुम नहीं था, वो चला गया भाई लाहौर। उधर से उसकी भाई एक बंदे से बात हुई, उसने बोला, पहले वो आर्मी में था, उसने बोला आप इधर इतने अट्टे कट्टे हैं, आपको कोई काम नहीं? उसने यार बोला अच्छा आप हमें काम दे। वो दहशतगर्द थे, आपको दहशतगर्दी का वाकया सुनाता हूँ
फिर भाई उन्होंने बोला हमारे पास काम है, आपने कुछ नहीं करना, बस उधर बैठना है और पैसे लिए जाने हैं। भाई वो उनके साथ चला गया। जब उधर उनके गया ना, मतलब कि एक महल टाइप ही था उधर, भाई वो एक मांथ रहा, उन्होंने भाई उसको बहुत पैसा दिया, ये लो आप पैसा भी लो, इधर रहो भी। भाई वो सोचने लगा यार ये पैसा मुझे दे किस बात कर रहे हैं, समझ नहीं लग रही। वो लोग कौन थे? ईरानी थे, अफगानी थे, कुछ पाकिस्तान मुलव्वस थे। भाई उन्होंने बंदे ही मराने थे और उन्होंने क्या, उसने कहा ठीक है अभी दो पैसा है, ये तो काम ही बड़ा, इधर फ्री घूमता फिर तो पैसे भी मिलते हैं। वो भाई फिर उसने पैसे लिए और इधर गांव में आ गया। इधर उसने आके अपने दोस्तों को भी बोला भाई, हाँ कौन काश्यप नहीं भाई, आप छोड़ दे, आपको फिर बता देता हूँ नाम और पता, लेकिन आप इनको दहशतगर्दी की बात तो सुनवा लेने दे। एक सच्चा वाक़या है, वो भी 1990 में इधर के लगभग ही था। भाई जब वो वापस आए तो उन्होंने दोस्तों को बोला कि भाई मुझे तो ऐसे पैसे मिलते हैं, काम भी नहीं होता। भाई उन्होंने बोला अच्छा है हमें भी ले जाओ। उसने बोला ठीक है मैं अब बात, फिर वो चला गया। एक मंथ लगा, फिर उसने बोला कि उन्होंने बोला ये लो भाई पैसे, जाके एक बार फिर घर एक आप चले आए, उधर इंजॉयमेंट कर रहे हैं। वो भाई कंफ्यूज हो गया, ये यार पैसा देते किस बात का। फिर वो इधर वापस आए तो उसने बोला यार, फिर उन्होंने 50-60 हज़ार दिया उस दौर में जब बड़ी मांग थी इस पैसों की, अब तो कोई नहीं। ठीक, उन्होंने दोस्तों ने बोला यार दाल में कुछ काला है, तू उनसे पूछ, दाल ही काम दलिया क्या है है? भाई, दाल ही दलिया। फिर भाई वो कराची चला गया तो उन्होंने काफ़ी फोर्स किया, तो उसने बोला, वो था भी गुंडा टाइप था, तो भाई उसने बोला यार को काम ते बताओ, आप मुझे पैसे देते जा रहे हो और इधर काम भी कोई नहीं, इंजॉय कर जाते रहे। उन्होंने बोला ठीक है आप फलाना ठिकाने पर आ जाएं, आपको काम बता देता हूँ। भाई वो जब कराची के एक ठिकाने पर गया तो उधर तो वसला, तो भाई बम बरूद। उन्होंने बोला भाई ये तुम्हारा काम है, एक बंदा मारना है, 10 आपको 5 लाख रुपया मिल जाएगा। उसने बोला ये कौन सी बात है, एक बंदा, मैं पहले भी मारता हूँ, एक बंदा भी मारना है, पैसे भी मिलने, ठीक है। भाई वो फिर उधर से आ गया इधर गांव, तो इधर उसने आकर बोला कि भाई बंदे मारने हैं, पैसे मिलने हैं। उन्होंने बोला ये यार क्या माजरा है। उसने फिर सारी रियलिटी दिखाई। तो बात करने का मकसद ये है कि उनको कोई इंसानियत से नहीं होती, कोई पाकिस्तान से नहीं होती, इंडिया से नहीं होती, उन्होंने बंदे मारने हैं और पैसे लेने हैं। लेकिन आप इस पर ना इल्ज़ाम ना लगाएं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है, वो दहशतगर्दी फैला रहा है। दहशतगर्दी वो होती है जो मासूमियत को मारना होता है, जो आप मेरी कर तो रहे हैं, बात एक सुने मुसलमान भाई। को गेंद लगती है आप उसको मार देते हैं, ये होती है दहशतगर्दी। इस पर भी कभी बोलें, इस पर भी दुनिया को दिखाएं। भाई वो कभी वीडियो आपने देखा ना मीम्स में, तो वो एक डायलॉग लगाते हैं ऐसी वीडियो में, बोलने वाला तो खैर नहीं भाई, वो बोलते हैं मज़ा आया, मज़ा आया बोलते हैं ना। अभी हमने वीडियो बनाई है वो, उसमें भी बोलते हैं भाई आपकी बात सुनकर मज़ा आया, वो काफ़ी वायरल हुआ। भाई कौन सा वाक़या आप सुना रहे हैं, आप कहाँ से कहाँ निकल गए, गुस्से में आप कहाँ से कहाँ आपको पहुंच- दहशतगर्दी की एक मिसाल दे रहा हूं, भाई। एक सच्चा वाक़या जो इधर ही हुआ है। बिल्कुल भाई हुआ होगा, मुझे तो नहीं पता था। खैर इनकी बात बिल्कुल ठीक है, इस तरह के वो लालच दे दो कि जो है ना वो छोटे काम लोगों को करवाते खा हैं। लेते हैं, और एक लंबे अरसे की उनकी प्लानिंग होती है, जिस तरह हमें जो है ना वो शॉर्ट वीडियोस में दिखाया जाता है या उसके बारे में थोड़ा बहुत है, तो ये तो हर बंदे को तकरीबन पता है कि इस तरह वो करते हैं। बहरहाल हमें इन चीज़ों से जो है ना वो बचना चाहिए इस मामले से ना। तो टॉपिक पे आते हैं, तो उन्होंने जो रियलिटी थी ना वो बिल्कुल दिखाई है कि जो कुछ लोग जो ना ये मूवीज़ में बहुत सारी वीडियोस के नीचे मैंने कमेंट पढ़े हैं कि कुछ जो है ना इसके अगेंस्ट भी बातें कर रहे हैं कि ये क्या किस चीज़ के पीछे लग गए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जितना इस वाक़े को अब जो है ना वो लोगों की अंडरस्टैंडिंग हुई है या लोगों को पता चला है ना, ठीक पहले भी था, लेकिन जो अब पता चला है ना लोगों को रियलिटी का कि ये वाकई इस तरह हुआ, तो वो पहले कभी नहीं हुआ था। तो उस लिहाज से वो जो आगे बैठे हुए तो वो कह रहे थे कि इतनी देर हुकूमत रही है, पहले को चलो छोड़े, आप भी 8 साल से आपकी हुकूमत है, तो आप हमें एक डाटा दे देते कि आप जो है ना वो कितने कश्मीरी पंडितों को जो है ना वो आपने वापस भेजा है। आप तो हर चीज़ आपके हाथ में, आपके पास सारा जो है ना वो हुकूमती मशीनरी है, वहाँ पे आप जगह भी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये भी उनका सवाल अच्छा था। तो इस तरह का डाटा तो खैर अभी हमें भी कोई नज़र नहीं आया कि यार कितने लोगों को, क्योंकि आप तो वहाँ पे हालात भी बेहतर हो गए हैं, जिस तरह हम कश्मीर के ऊपर देखते हैं कि वहाँ के लोग भी जो है ना वो हर चीज़ को मान रहे हैं, डेवलपमेंट वहाँ पे शुरू हुई है। तो इसके ऊपर जो है ना वो ज़रूर फोकस करना चाहिए। PM मोदी साहब ने भी मूवी देखी है, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है ना वो एक डिबेट की हुई थी।
تو میں بھی اگر اب یہ سٹارٹ ہوا ہے، اگر نہیں پہلے گئے یا کچھ گئے ہوں گے انٹرنل، اور اب جو ہے نا وہ مزید لگتا ہے کہ یہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیولی طرح کا جو ہے نا وہ ایک ایکشن لے گئے، ایکشن یا اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی حساب کتاب لگائیں گے کہ جتنے ہو پاسبل ہو سکا جو ہے نا ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ واپس بھیجیں، اور جو ہے نا وہ بھی خوش ہو جائیں گے جس طرح، کیونکہ یہ ایک ان کے ساتھ جس طرح کے یہ واقعات ہوئے ہیں، ہم تو اتنی ویڈیوز اس کے اوپر بنا بھی چکے ہیں، اب تو ہمیں بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ یار واقعی یہ جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ظلم تھا. وہ تو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ جس طرح سٹیپ بائی سٹیپ ہم بہت ساری چیزیں جو ہے نا اوپنلی اس میں آ رہی، جس طرح ابھی یہ انہوں نے ایک لڑکے کشمیری لڑکے کو جو ہے نا وہ انٹرویو پہ لیا ہوا تھا، اور اس نے جو ہے نا وہ کھل کے جو ہے نا وہ ساری چیزیں بتائی تھی. بالکل بھائی. تو باقی اب مزید دیکھتے ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ گائز آپ کا ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.